Yes, good morning. May I audible to everyone? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Okay. Yes. In the last lecture, which topic we have covered, students? In the last lecture, which topic we have covered? The last lecture, which topic we have covered, students? Last lecture was, I think, practical, na? Yes, single row functions. Yes, very good. Okay, yes. Now today we will learn about the transaction, DBMS transaction. Okay, unit 1, 2, 3 we have completed. Okay, 2 to 3 topics are remaining of unit 3. Okay, that I will cover later. Okay, now today we will start with the transaction, DBMS transaction. This is a topic of unit 4. Okay, as I told you in the last lecture, you have to complete your assignments as well as your practicals. Okay, I already told you how to write the practicals. Okay, which practical you have to write and how to write your practicals, that we have discussed in the last lecture. Okay, yes. Now this is a topic of unit 4, DBMS transaction. Unit 1 is regarding basic of the database. What is the database is? Okay, then structure, advantages, disadvantages, generalization, inheritance, that all we have covered in the unit 1. In the unit EA diagram, okay, also important. Then in the unit 2, we have covered the keys, okay, and normalization. Normalization we have covered in the unit 2. Okay, then commands we have covered, types of keys we have covered. Okay, all this we have covered in the unit 2. Commands, okay, DDL, DML, all commands we have covered in the unit 2. In the unit 3, aggregate function, joins, set operator, views, all this concept we have covered in the unit 3. Okay, and now unit 4, there is a new topic, transaction. Okay, transaction. Okay, what is transaction, student? As you know, what is transaction? Not regarding in the DBMS. Generally, what is transaction? Generally, what is transaction? इसको बोलते हैं transaction क्या होता है? What is a transaction? When you will use this word transaction? Hello. Yes, yes. Ma'am, it means sending or receiving any kind of amount. We can say transaction. Yes, good. Yes. One more answer is there, Gauri Nishad, to transfer money. Yes. We are using the word transaction at the time of transferring money. Yes. Surprise transaction is complete agreement between buyer and seller. Okay. This is a, okay. Yes. Transaction. Okay. So you know what is a transaction? Transaction means when we transfer, generally when we transfer the money from one account to another account, or we are transferring to our friends, okay, money वगैरह deposit करते कुछ भी, that we call it transaction. Okay, so generally transaction can be defined as group of tasks. Okay, a transaction can be defined as group of tasks. A single task is the minimum processing unit which cannot be divided further. Okay, let's an example, simple example we will consider. Suppose a bank employee transfer rupees 500 from A's account to B's account. Okay, read again. Suppose a bank employee, okay, bank employee transfer rupees 500 from one account to another account. Okay, so it is a transaction. Okay, when accountant or when any employee, bank employee transfer money from one account to another account, then it called as a transaction. The transaction is done by the employee. Okay, so in the bank there is a DBMS is used, database is used. Okay, in that, in bank's database there are all the information regarding customers. Okay, their account, their balance, all the informations are stored in the DBMS. Okay, all the information are stored in the DBMS. Now all thing is online. Okay, now everything is online. We can transfer online money. Okay, using the various applications, Google Pay or Paytm. Okay, using all this application we can transfer money online. Okay, so money are transferring online, but how? Okay, through the database. Okay, through the database.
Okay, all these things done by the database. In the database, all the customers information, customers bank account details, credited amount, debited amount, all are stored in the database. Okay, when you are transferring money online, then the money will be debited from your account and credited to your फ्रेंड्स अकाउंट, जिसको आप ट्रांसफर करो उसके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा. मींस डेटाबेस में चेंज हो रहा है. कौन से डेटाबेस में? इन दी बैंक्स डेटाबेस में. ओके, तो इन दी बैंक्स डीबीएमएस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल दिस थिंग्स कहाँ पे स्टोर होता है? डीबीएमएस में स्टोर होता है, बैंक्स में. ओके, फॉर एग्जांपल is account. Okay, so there are some steps. Okay, there are some steps which are performed at the time of transaction. Okay, for example, A के अकाउंट में से B के अकाउंट में मनी आया, ट्रांसफर करा है कोई बैंक एम्प्लॉय, what will be happen? Which steps will be followed? So these steps will be followed. For example, A के अकाउंट में से B के अकाउंट में will be employee transferring the money. So in A's account, the account जो है, the account will be first open, means database open होगा. Okay, now old balance जो होगा, old balance equals to A dot balance. So old balance is a one variable. Okay, in that variable जो एक अकाउंट जिसका अकाउंट है उसका बैलेंस विल बी स्टोर्ड हो जाएगा. नाउ मनी ट्रांसफर हो गया तो उसके बैलेंस में से 500 जितना भी हम लोग ट्रांसफर करें 500 क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. सो डेटाबेस में चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ ए डॉट बैलेंस इक्वल्स टू न्यू बैलेंस, मतलब न्यू बैलेंस जो था डेबिट होके वो किसको असाइन हो जाएगा? ए डॉट बैलेंस में. ओके, मतलब अकाउंट क्या हो गया? अपडेटेड हो गया. देन अकाउंट विल बी क्लोज. ओके, दिस स्टेप्स, ये जो स्टेप्स है ना, that all these steps will be performed on the database. Okay, कहाँ पे परफॉर्म होता है? डेटाबेस में परफॉर्म होता है. ओके, सेम बी के अकाउंट में क्या होगा? ओके, बी जिसको हम लोग ट्रांसफर करें उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? द मनी विल बी क्रेडिटेड. ओके, मतलब उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? उसके अकाउंट में जितना भी ट्रांसफर किया तो उतना प्लस जो बैलेंस है एक्जिस्टिंग बैलेंस प्लस जितना हमने ट्रांसफर किया तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. ओके, तो डेटाबेस चेंज हो रहा है. मनी तो ट्रांसफर हो रहा है. ओके, मनी आर ट्रांसफरिंग, बट एट द सेम टाइम जो डेटाबेस है वो डेटाबेस भी क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है. डेटाबेस क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है. अभी ऑनलाइन है तो जैसे आपने अपने अकाउंट में से मनी ट्रांसफर किया तो यू विल गेट द मैसेज इमीडिएटली कि योर बैलेंस जो है उस बैलेंस में से डेबिट हो गया. ओके, और जिसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उसके अकाउंट उसको भी मैसेज आएगा कि योर अकाउंट जो है दैट विल बी क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट एंड ये इस पर्सन या जो ट्रांजैक्शन आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी डिस्प्ले होता है इन दी मैसेज में. तो दिस आर दी ट्रांजैक्शन. इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन. ओके, तो एट ट्रांजैक्शन में डेटाबेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑल दिस ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस को क्या करता है? अपडेट करता है. ओके, दिस इज अ ट्रांजैक्शन. यस, नाउ व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टीज? ओके, दिस आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन. एसिड प्रॉपर्टीज आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, what are the acid properties? See, the acid properties are used for maintaining the integrity of database during transaction processing. Yes, what is the meaning of integrity? What is the meaning of integrity, students? What is the meaning of integrity? Who will tell? Integrity is a yes. What is the meaning of integrity? One answer is the correct data. Yes, Arun. Okay, correct data. Okay, correct data should be stored in database. Integrity मतलब क्या? Correct data store होना चाहिए. Okay, one more answer is the correct data. Yes, Rinki. Okay, तो correct data जो है वो database में store होना चाहिए. At the time of transaction. Okay, at the time of transaction, the integrity is to maintain the integrity is very important. Okay, for example, अगर हमारे अकाउंट में से हम लोग ट्रांसफर करें, ओके हमारे अकाउंट में से हम लोग ट्रांसफर करें तो हमारा अकाउंट बैलेंस दैट मस्ट बी अपडेटेड. फॉर एग्जांपल हमारे अकाउंट में 5000 है. ओके, इफ वी हैव ट्रांसफरिंग 1000 रुपीज टू अवर फ्रेंड तो 1000 हमारे अकाउंट में से क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी माइनस, डेबिटेड होना चाहिए. ओके, देन जो एक्चुअल बैलेंस है वो हमको शो करना चाहिए. सेम थिंग जिसको हम लोग ट्रांसफर करें उसके अकाउंट में क्या होना चाहिए? 1000 रुपीज क्रेडिट होना चाहिए. ओके, क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हमारे में से डेबिट हो गया एंड जिसको हम लोग ट्रांसफर करें उसके अकाउंट में नहीं जा रहा है. ऐसे नहीं होना चाहिए. ओके, इफ समटाइम्स कुछ नेटवर्क एरर इश्यू कुछ होता है, ठीक है, तो समटाइम्स इट विल बी हैपन कि अकाउंट में हमारे में से डेबिट हो गया बट सामने वाले में क्रेडिट नहीं हुआ. तो दैट इज अ सर्वर इश्यू, बैंक सर्वर इश्यू. बट आफ्टर दी सॉर्ट आउट दैट इश्यू द अगेन जो आपका बैंक डेटाबेस जो है दैट विल बी अपडेटेड. ओके, तो इंटीग्रिटी इज वेरी मेन. ओके, एसिड स्टैंड फॉर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ACID? Acid stand for atomicity. Okay,
consistency, isolation, and durability. ACID. A for atomicity, C for consistency, I for isolation, and D for durability. Okay, so how the transaction should be? Okay, transaction कैसे होना चाहिए? The transaction must follow all these property, all 4 properties. एक तो transaction must be atomic होना चाहिए, transaction जो है that is consistent होना चाहिए, isolation होना चाहिए, durability होना चाहिए. Okay, so these are the properties of transaction. Okay, these are the properties of transaction. कि जब transaction perform होता है, तो the transaction must follow, you can say, all these properties. Okay, the first is atomicity. What is the meaning of atomicity? The transaction is a single unit of operation. Okay, a transaction is a single unit of operation. You either execute it entirely or do not execute it at all. Okay, there cannot be partial execution. Means whenever the transaction will be happen, the transaction must be atomic. मतलब transaction है तो पूरा complete होना चाहिए, या तो कुछ एरर आ रहा है तो नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए. मतलब ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंप्लीट और इट मस्ट बी पूरा अबॉर्टेड हो जाना चाहिए, पार्शियली नहीं होना चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियली? फॉर एग्जांपल एक अकाउंट में से हम लोग बी में ट्रांसफर करें, तो एक अकाउंट में से मनी कट हो रहा है, ओके, बट बी के अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो दैट इज अ पार्शियल ट्रांजैक्शन. क्या हो गया? वो पार्शियल ट्रांजैक्शन हो गया. ऐसे नहीं होना चाहिए. आइदर कुछ एरर आ रहा है तो एक अकाउंट में से भी डेबिट नहीं होना चाहिए, बी के अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. अगर इफ सम इश्यू या तो सम एरर्स आ जाए, ओके, तो क्या हो गया कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया. या तो फिर ट्रांजैक्शन फुल्ली सक्सेसफुल होना चाहिए. मींस क्या कि एक अकाउंट में से कट हुआ तो बी के अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए. दैट इज एटोमिसिटी. उसका हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी. ओके, एटोमिसिटी मतलब क्या? आइदर ट्रांजैक्शन मस्ट बी फुल होल डन, या तो फुल्ली एग्जीक्यूशन होना चाहिए, एंटायरली इट विल बी डन, अदरवाइज और कि वो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, फेल हो जाना चाहिए. ऐसे पार्शियली नहीं होना चाहिए कि एक अकाउंट में से कट हो रहा है बट दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है. दैट इज अ पार्शियल एग्जीक्यूशन नहीं होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, एटोमिसिटी. ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी. ओके, कंसिस्टेंसी. Once the transaction is executed, it should move from one consistent state to another consistent state. Okay, consistency मतलब क्या? Once the transaction is executed, okay, एक बार transaction execute हो गया, fully execute हो गया, okay, successfully execute हो गया, तो it should move from one consistent state to another consistent state. मतलब क्या कि अगर हमारे अकाउंट में if from our account the money is debited, okay, अगर हमारे अकाउंट में से मनी डेबिटेड हो रहा है, okay, तो प्रॉपर फॉर एग्जांपल 500 हमने ट्रांसफर किया तो 500 ही क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए. एंड 1000 रुपीज से हमारे अकाउंट में बैलेंस 500 हम लोग ट्रांसफर करें, तो 1000 में से 500 ट्रांसफर किया तो कितना बचा? 500. तो कंसिस्टेंट के 500 ही रिमेनिंग बताना चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं. तो दैट इज अ कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंस होना चाहिए. ओके, बी के अकाउंट में ट्रांसफर किया 500, तो उसके अकाउंट में 2000 बैलेंस था, प्लस उसके अकाउंट में और 500 आ गया, तो बैलेंस कितना होना चाहिए? 2500. उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी अपडेट नहीं होना चाहिए. मतलब डेटाबेस जो है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो डेटाबेस मस्ट बी इन कंसिस्टेंट स्टेट. तो उसमें प्रॉपर वैल्यू जो है स्टोर होना चाहिए. दैट इज अ कंसिस्टेंसी. उसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंस बोलते हैं. ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी इज आइसोलेशन. The third property is isolation property. The transaction should be executed in isolation from other transaction. Okay, I will explain. Okay, I will explain. During concurrent transaction execution, intermediate transaction result from simultaneously executed transaction should not be made available to each other. For example, in the online, suppose you are booking your movie ticket online. ओके, तो पॉसिबल है कि बहुत सारे जो कस्टमर्स है वो ऑनलाइन टिकट बुक करें. ओके, तो बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन साइमल्टेनियसली दे आर बुकिंग दैट टिकट. ओके, पेमेंट भी करे, टिकट बुक हो गया तो पेमेंट भी करे. तो जो ट्रांजैक्शन है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ से ऑनलाइन कुछ टिकट बुक करी हूँ, सेम थिएटर में सेम ऐप से थ्रू यू आर ऑल्सो बुकिंग द टिकट, मैं भी पेमेंट करूँ, आप भी पेमेंट करो. तो जो ट्रांजैक्शन जो है, मेरा जो पेमेंट का ट्रांजैक्शन आपका जो है, दैट should not be conflict नहीं होना चाहिए. ओके, पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. होता है ना, ऐसे होता है. ठीक है, नाउ ऑल आर ऑनलाइन. अभी तो हो गया, ऑल थिंग इज नाउ ऑनलाइन. तो पॉसिबल है कि एक ही ऐप पे या तो एक ही वेबसाइट्स पे साइमल्टेनियसली पेमेंट हो रहा है.
आप कुछ अमेजोन पे परचेस कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आप परचेस करो एट द सेम टाइम और कोई यूजर भी परचेस करा है और कोई कस्टमर भी परचेस करा है कोई और जगह से, वो भी पेमेंट करा है, आप भी पेमेंट करे। वेबसाइट तो एक ही है, अमेजोन वेबसाइट इज वन वेबसाइट, पेमेंट के लिए पेज भी एक है। ओके, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है, यू कैन ऑल्सो डू पेमेंट साइमल्टेनियसली। और कोई सिटीज में है तो और कोई प्लेस पे और कोई कस्टमर है, वो भी you or she can also do the payment simultaneously. तो ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे होना चाहिए, ट्रांजैक्शन शुड बी एग्जीक्यूटेड इन आइसोलेशन, आइसोलेट, एक दूसरे पे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम अदर ट्रांजैक्शन। ओके, कॉनकरेंट मतलब क्या, साइमल्टेनियसली। कॉनकरेंट मतलब क्या, पैरेलली जब काम हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो जो उसका इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं होना चाहिए। ओके, तो दैट इज आइसोलेशन। यस, yes means separate transaction. Okay, separate transaction you can say, मतलब एक ट्रांजेक्शन जो सेकंड ट्रांजेक्शन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी मैं बुकिंग करी हूँ और कोई बंदा तब तक बुक नहीं कर सकता, नो। ओके, अगर ऐसे होगा तो फिर कितना वेट लगेगा, कितना वेट करना पड़ेगा सबको, तो ऐसे नहीं हो जाएगा। साइमल्टेनियसली ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैरेलली ट्रांजेक्शन हो रहा है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जो ट्रांजेक्शन मल्टीपल एक साथ में हो रहा है वो एक दूसरे को कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, सबका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। ओके, दैट इज द आइसोलेशन प्रॉपर्टी। ऑल आर द प्रॉपर्टीज, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजैक्शन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी। द नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ओके, after successful completion of the transaction, the changes in the database should persist even in the case of system failure. What is the meaning of persist, student? Persist मतलब क्या? What is the meaning of persist? What is the meaning of persist, students? Who will tell? Okay, read again. After successful completion of transaction, after successful completion of a transaction, the changes in database should persist. मतलब database में जो change हुआ है, ठीक है, वो change क्या होना चाहिए, as it is save हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि temporary वो save हो जाए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हमने अकाउंट में से मनी ट्रांसफर किया है, वो डेबिट का मैसेज हो गया, आ गया, ठीक है, वो उतना ही बैलेंस परसिस्टेंट होना चाहिए अंटिल हम लोग कोई और न्यू ट्रांजैक्शन नहीं करे तब तक। ओके, मतलब अगर सिस्टम फेल भी हो गया या तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गया तो भी जो डेटाबेस में हमारा बैलेंस जो है वो क्या होना चाहिए, यस, कोई नो, सिमिलर डेटा फॉर मल्टी प्लेस। ओके, सिमिलर डेटा फॉर मल्टी प्लेस। ओके, हाँ, यू कैन से वैसे, बट परसिस्ट मतलब क्या, परमानेंट स्टोर होना चाहिए, ठीक है, उसमें ऐसे नहीं कि आज कुछ बता रहा है और कल कुछ बता रहा है, वैसे नहीं। ओके, जो बैलेंस जो है वो प्रॉपर, डेटाबेस जो है चेंजेस उसमें हम लोग कुछ भी करें ड्यू टू ट्रांजैक्शन एंड चेंजेस आर देयर इन द डेटाबेस, इट शुड बी परसिस्ट, वो परमानेंट होना चाहिए जब तक उसमें हम लोग और कोई न्यू ट्रांजैक्शन नहीं करे तब तक। तो दैट इज द ड्यूरेबिलिटी। ओके, अगर सिस्टम फेल भी हो रहा है तो भी डेटाबेस में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। Yes, making continuous. Yes. Okay. All are the properties. Okay, properties of the transaction. कि transaction must be atomic. तो fully complete होना चाहिए या तो फिर नहीं होना चाहिए, partial execution नहीं होना चाहिए transaction. The second is consistence. Okay. Once the transaction executed, it should be moved from one consistent state to another consistent. मतलब proper. ओके, 500 ट्रांसफर हो रहा है, 500 डेबिट हुआ हमारे अकाउंट में से, तो 500 ही डेबिट होना चाहिए इन अवर अकाउंट, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। दैट इज कंसिस्टेंस। आइसोलेशन, इफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन आर देयर, ओके, मल्टीपल ट्रांजैक्शन है परफॉर्म साइमल्टेनियसली, तो जो ट्रांजैक्शन है, ओके, ऑल ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। एंड ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, आफ्टर कंप्लीशन, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो भी चेंजेस हम लोग डेटाबेस में किया, जितने भी डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, जो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट हुआ, वो एज इट इज इन द डेटाबेस में होना चाहिए। इट शुड बी परसिस्ट। ओके, ऐसे नहीं कि आज हम देख रहे तो और कुछ बैलेंस है, कल है तो और कुछ बैलेंस है, नो, पर जो चेंजेस, फाइनल चेंजेस हुआ, दैट शुड बी परसिस्ट। ओके, so all are the properties of the transaction. Okay, yes, now second topic is, why do you need concurrency in transaction? Why do you need concurrency in transaction? Okay, एक concurrency मतलब क्या, simultaneously. Concurrency मतलब क्या, you can say parallelly or simultaneously, multiple transaction. Okay, a database is a shared resource access. Okay, database कैसा है, shared resource access. For example, I already told you that there is one database. Okay, एक database होता है, in one database we can create the multiple tables. Okay, in bank
तो बैंक में जितने भी कस्टमर है, तो फॉर ऑल दी कस्टमर देयर आर ओनली वन डेटाबेस, एक ही डेटाबेस है। बैंक हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग डेटाबेस दे विल नॉट क्रिएट। ओके, द डेटाबेस इज अ शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस। ओके, it is used by many users and processes concurrently. Okay, for example, if we are consider the example of Amazon, ठीक है, तो Amazon में जो हम लोग पेमेंट करें, तो Amazon का डेटा जो है वो होल वेबसाइट के लिए देयर इज ओनली वन डेटाबेस होगा। ऐसे नहीं कि हर एक चीज के लिए अलग अलग डेटाबेसेस है। ओके, फुल होल Amazon साइट के लिए देयर इज ओनली वन डेटाबेस। तो जो भी चेंजेस होगा, जो भी प्रोसेस होगा, वो किस में होगा? एक ही डेटाबेस में होगा। ओके, फॉर एग्जांपल the banking system, railway system, air reservation system, stock market monitoring, okay, supermarket inventory, checkouts, etc. Okay, all have the single database. सबके पास क्या होता है? all are maintaining single database. Okay, but वो single database पे जो process जो है, okay, the processes and users are multiples. Okay, users are multiples user. Okay, multiple users or you can say many users or many processes जो है वो एक ही डेटाबेस पे क्या होता है? काम होता है। ओके, यस। कॉनकरेंसी मतलब साइमल्टेनियसली। आई टोल्ड यू, आई गिव एन एग्जांपल ना। फॉर एग्जांपल अमेज़न के साइट पे if you are purchasing something, okay, and if you are doing the payment, तो at the same time possibility है कि और कोई कस्टमर भी उसमें पेमेंट कराए, और multiple 4 to 5 customers are doing the payment simultaneously. Okay, that is called the मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर साथ में हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकरेंसी। ओके, नॉट मैनेजिंग कॉनकरेंट एक्सेस में क्रिएट इश्यू लाइक हार्डवेयर फेलियर एंड सिस्टम क्रैशेस। ओके, कॉनकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, नाउ लीव इट, ये भी छोड़ दो, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, लीव इट, इसको छोड़ दो, इट विल। ओके ओके, why do you need concurrency in transaction? Concurrency, simultaneously execution क्यों चाहिए transaction? Why? Because जो database है, database is shared resource. ठीक है, हर एक एप्लीकेशन के लिए एक ही database हम लोग मेंटेन करते हैं। database एक है, but users, वो database को यूज करने वाले users और प्रोसेसेस और ट्रांजैक्शन के जो database पे परफॉर्म हो रहा है वो क्या होता है? मल्टीपल ट्रांजेक्शंस होता है। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पेमेंट का जो है अमेज़न पे पेमेंट का जो है, तो पॉसिबिलिटी है कि साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस दे कैन डू द पेमेंट साइमल्टेनियसली। आपको वेट करना पड़ता है जब आप पेमेंट के लिए जाते हो ऑन द अमेज़न और कोई वेबसाइट्स पे, तो ऐसा कोई बोलता है कि नहीं वेट करो और कोई कस्टमर पेमेंट करना है? नो, यू कैन डू पेमेंट, योर फ्रेंड कैन ऑल्सो डू द पेमेंट साइमल्टेनियसली। तो मल्टीपल यूजर्स और मेनी यूजर्स कैन डू द पेमेंट साइमल्टेनियसली, दैट इज द कॉनकरेंसी। ओके, तो जो ट्रांजैक्शन मल्टीपल यूजर ट्रांजैक्शन करे वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑल दिस ट्रांजैक्शन। ओके, सो कॉनकरेंसी इज नीडेड इन द ट्रांजैक्शन। ओके, यस, नाउ द नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। ओके, दैट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, यस, वन मोर, यस, अरुण, व्हाट आर यू आस्किंग? व्हाई नीड रिपीट? Okay, repeat again. Concurrency, repeat again. Okay, yes, concurrency मतलब क्या? Multiple transaction. Okay, multiple transaction simultaneously हो रहा है। ठीक है, तो that transaction जो multiple transaction साथ में हो रहा है वो conflict नहीं होना चाहिए। All the transaction जो है multiple transaction क्या होना चाहिए? Independent होना चाहिए, एक दूसरे से क्या होना चाहिए? Independent होना चाहिए। Simultaneous transaction possible है कि नहीं? Yes, yes, अरुण मुझे बताओ, let me tell कि आप कौन सा कोई ऑनलाइन आपने कुछ शॉपिंग किया है? यस और नो? यस और नो? अरुण, टेल मी। यस मैम। ओके, तो कौन से वेबसाइट से आपने शॉपिंग किया है ऑनलाइन? टेल मी। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। ओके, फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न। ओके, जब आपने शॉपिंग किया, ठीक है, व्हेन यू डिड द शॉपिंग, ओके, फ्रॉम द वेबसाइट्स, तो आपको जब पेमेंट आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, तो आपको कोई मैसेज आया कि अभी आप पेमेंट नहीं कर सकते, कि अभी और कोई पेमेंट कर रहा है? ऐसा कोई मैसेज आपने देखा था? नो, देखा? नो मैम। नो, तो आप पेमेंट करो, पॉसिबल है कि एट दैट टाइम फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस से मल्टीपल यूजर्स पेमेंट करे, तो पॉसिबल है। डेटाबेस तो एक ही है, फ्लिपकार्ट का जो डेटाबेस है, डेटाबेस इज सिंगल, बट मल्टीपल यूजर्स जो है, ओके, मल्टीपल यूजर्स जो है, दे कैन डू दी पेमेंट साइमल्टेनियसली विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, विदाउट एनी डिफिकल्टी। ओके, तो साइमल्टेनियसली जो ट्रांजैक्शन जो है,
ठीक है, साइमल्टेनियसली जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल है, ओके, और वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब क्या, एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूजर्स कैन यूज, ओके, क्लियर। साइमल्टेनियसली एक्सेस टू डेटाबेस, ओके। कॉन्करेंसी मतलब क्या, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ बहुत सारे यूजर्स जो है, ठीक है, वो डेटाबेस को एक्सेस करे विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट यू कैन से, ओके। तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंसी, ओके। एक ही डेटाबेस तो हम लोग एक ही बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, इन दी 5th सेमेस्टर मेक एनी प्रोजेक्ट, कोई भी वेबसाइट वगैरह बना रहे हो, उसमें डेटाबेस यूर यूजिंग द डेटाबेस, तो आप एक ही डेटाबेस बनाओगे आपके प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग अलग अलग डेटाबेस नहीं बनाओगे। इन वन डेटाबेस यू कैन क्रिएट द मल्टीपल टेबल्स। तो आपने सपोज पेमेंट के लिए कोई ऑप्शन रखा, ठीक है, आपने पेमेंट के लिए कोई बनाया है कि चलो हमारे वेबसाइट में केक ऑनलाइन शॉपिंग केक बनाया आपने, सॉरी ऑनलाइन केक बुकिंग बनाया वेबसाइट, उसमें आपने एक डेटाबेस बनाया कि जिसमें कस्टमर्स कैन परचेज द केक, ओके, फ्रॉम योर वेबसाइट्स। तो आप उसमें पेमेंट के लिए रखोगे। तो आप पेमेंट के लिए जब कोडिंग करोगे ना, तो आप कैसा कोडिंग करोगे कि मल्टीपल जो यूजर्स है वो पेमेंट कर सकते हैं, ओके। जो पेमेंट करेंगे वो चेंजेस कहाँ पे होगा, आपके सिंगल डेटाबेस में होगा। तो कॉन्करेंसी मतलब क्या कि साइमल्टेनियसली एक्सेस टू द डेटाबेस, ओके, साइमल्टेनियसली एक्सेस टू अ डेटाबेस बट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट द ट्रांजैक्शन, ओके। एक दूसरे के ट्रांजैक्शन को कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। आपने अमेजोन से कुछ मंगा रहे हो, पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम जब आप पेमेंट करो तो एट द सेम टाइम वही टाइम पे और की जगह से और कोई कस्टमर भी पेमेंट कर रहा है, तो आपको वेट नहीं करना पड़ता। आपको ऐसा मैसेज डिस्प्ले नहीं होता कि आप अभी वेट करो कि और कोई कस्टमर वो पेमेंट कराए, नहीं, मल्टीपल कस्टमर साइमल्टेनियसली एक साथ पेमेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है, कॉन्करेंसी, ओके। तो आप पेमेंट करो तो आपके अकाउंट में से ही मनी कट होगा, और कोई साइमल्ट आपके साथ और कोई पेमेंट कराए एट द सेम टाइम वही वेबसाइट से, ओके, वही पेज से, तो उसने उसके अकाउंट में से ही मनी कट होगा। तो ऐसे नहीं होगा कि वो भी साथ में करे आप भी साथ में करे, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कि आपका अकाउंट और उसका अकाउंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ओके। तो दैट इज अ कॉन्करेंसी, क्लियर। नाउ आई होप क्लियर। Yes, ma'am. ओके, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, Yes, ma'am. यस, ओके, और ओवरलैप नहीं होना चाहिए कभी। ट्रांजैक्शन मल्टीपल ट्रांजैक्शन तो होता ही है ऑनलाइन में, ऑल द ऐसे हम लोग वेट नहीं करते। बैंक में अगर आप लोग जा रहे हो तो लाइन बाय लाइन जाओगे, इन दी क्यू यू विल स्टैंड वन बाय वन, ओके। बट ऑनलाइन तो आपको नहीं पता है कि आपके साथ में और कितने लोग ट्रांसफर करें मनी, या तो कितने लोग एक साथ शॉपिंग करें, ओके। तो कॉन्करेंसी मतलब क्या कि साइमल्टेनियसली एक्सेस, okay. Now the second is states of transaction, okay. The second topic is state of transaction. जैसे हम लोगों ने इन ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ प्रोसेस देखा था कि जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो द प्रोसेस है डिफरेंट स्टेट, कि पहले स्टार्ट हुआ, देन वेट कर रहा है, देन एग्जीक्यूट हो रहा है, देन, ठीक है। तो वो जैसे स्टेट्स हमने पढ़ा प्रोसेस का, तो सेम ट्रांजैक्शन हैज डिफरेंट स्टेट्स, ओके। जब ट्रांजैक्शन अकर होता है तो वो कौन से स्टेट में होता है, देन वेट करे तो कौन से स्टेट में है, कंप्लीट हो गया तो वो कौन से स्टेट में, तो जस्ट states are there for the transaction, okay. So for example, first state is active state, okay. The transaction enters into the active state when the transaction process begins, okay. Transaction process begins. During this state read or write operation can be performed, okay. जब कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म होता है तो डेटाबेस पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कौन सा, रीड एंड राइट, ओके। फॉर एग्जांपल आप एटीएम में से मनी जब निकालने जाते हो, ओके, व्हेन यू आर मनी निकालते हो एटीएम में से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप उस एटीएम मशीन विल आस्क टू यू के एंटर योर पिन, ठीक है। आपने पिन एंटर किया, आपका पहले तो कार्ड डालते देन पिन एंटर किया, ओके। फिर एंटर द अमाउंट, तो आपने 2000 डाला, आपको 2000 क्या करना है, निकालना है। तो पहले वो चेक करेगा कि आपके अकाउंट में 2000 है कि नहीं, मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ ऑन दी डेटाबेस में। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, डेटाबेस में रीड ऑपरेशन, ओके। देन आप उसको निकालते हो मनी, ठीक है। 2000 अगर है तो वो आपको रिटर्न मतलब निकाल के देगा, तो आप मनी निकालते हो। तो उसके बाद निकालने के बाद अगेन क्या हो जाएगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा ऑन दी डेटाबेस के, ये उतना उसको क्या करना है, अभी डेबिट कर देना है। अगर सपोज आपके अकाउंट में 5000 है, आपने 1000 रुपीज निकाले, तो आपने 1000 रुपीज निकाले तो वो क्या करेगा, उसको डेटाबेस को अगेन चेंज करेगा कि 5000 में से 1000 निकल गया, तो अभी कितना बचा, 4000। तो वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट ऑपरेशन, ओके। So whenever transaction perform
So on the database, there are two operations will be done. The first is read operation. The second is write operation. The first is read operation and the second one is write operation. Read मतलब क्या, पहले वो check करेगा कि yes sufficient balance है कि नहीं. Then वो write करेगा. Okay, after the transactions को modification करने के लिए, change करने के लिए. So active state मतलब क्या? A transaction enters into an active state when the execution process begin. जब execution start हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजैक्शन अभी कौन से स्टेट में, एक्टिव स्टेट में. ओके, और एक्टिव स्टेट में टू ऑपरेशन परफॉर्म होता है डेटाबेस पे, ऑन द डेटाबेस, रीड एंड राइट. ओके, द सेकंड इज पार्शियली कमिटेड स्टेट. द सेकंड इज पार्शियली कमिटेड स्टेट. ओके, दिस आर ऑल जस्ट स्टेट है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है, हम तो ओनली ट्रांसफर करेंगे, बट जो हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ओके, वो कौन से स्टेट में वो हम लोग पढ़ रहे, ठीक है. सपोज हम लोग हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम बोलेंगे इट इज इन एक्टिव स्टेट. ओके, पार्शियली कमिटेड मतलब क्या? A transaction goes into the partial committed state after the end of the transaction. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने आपके अकाउंट में से 2000 निकाला तो वो क्या हो गया, पार्शियली हो गया. आपने निकाला है, आपको मिल गया पैसा, बट अभी तक वो डेटाबेस में चेंज नहीं हुआ, उसने अभी तक डेटाबेस में चेंज नहीं किया, आपको अभी मैसेज नहीं आ रहा है. ओके, बट आपने निकाल दिया मनी, दैट इज पार्शियली कमिटेड. क्या हो गया, पार्शियली कमिटेड स्टेट. विच स्टेट? पार्शियली कमिटेड स्टेट. ओके, next is committed. Okay, when the transaction is committed to state, it has already completed the execution successfully. मतलब डेटाबेस में भी फाइनली चेंज हो गया, आपने मनी निकाला, आपको डेटा मैसेज आ गया मोबाइल में, यस कि आपका अभी इतना अकाउंट में बैलेंस है, तो फाइनली डेटाबेस में चेंज हो गया. तो यू कैन से कि नाउ अभी कौन से स्टेट में ट्रांजैक्शन कमिटेड, के पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया. पैसे बाहर निकाल रहे बट अभी तक आपको मैसेज नहीं आया, मैसेज आने में डेटाबेस को अपडेट करने में थोड़ा फ्यू मिनट्स फ्यू सेकंड्स दे रिक्वायर्ड. ओके, so that is a partially committed.